Good morning, everyone. Students, we are continuing with chapter number 15, Bank Reconciliation Statement. And in the previous class, we have discussed the first method. Okay, the first method where we have taken balance as per cash book, which is having debit balance favorable, right, students? So as we have discussed in the previous class, and we know that we have four kind of balances: balance as per cash book, debit balance is your favorable, and second one is your balance as per cash book, this is credit balance, and this is called overdraft, right? This is unfavorable balance and called overdraft. And same way we have the balances of the passbook. So first one we have discussed in this previous class, and today we are going to start the next one, balance as per cash book, but we will be taking credit balance. Okay, and this will be considered as overdraft. All right, so let's proceed with it. It's very simple. As we have done the first one, everything is same except a little change. So this is the format. This is plus, this is minus. Okay, particulars, and this is your BRS, bank reconciliation statement, as so and so date. All right, and here let's take this illustration number 6, where they have taken when credit balance unfavorable or overdraft balance is given as per cash book. All right, so you have to understand the question very carefully. It's telling that overdraft balance, they can use any of the language. All right, so overdraft balance shown by the bank column in the cash book of Mr. Vivek is rupees 45,000. Okay, prepare bank reconciliation statement as on 31st December 2017. A few things, students, you should keep in your mind: the date when you prepare, because rest of the things will be based on this date only. Okay, so here you have to take balance as per cash book, and you have to mention credit balance. Okay, so what you have to take care, students, if it is a positive balance, as we have discussed in the previous class. Okay, कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है, पॉजिटिव है, फेवरेबल है, सो वी स्टार्ट इट विद द प्लस, सो दैट फिगर वी राइट इन द प्लस कॉलम. बट हेयर इट इज द ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव है, सो वी स्टार्ट विद माइनस कॉलम. ओके, सो दे हैव गिवन द फिगर 45,000 rupees. So this is the difference. This is very important, students. If you don't write this 45,000 at a right place, the whole question will be wrong. Okay, so wherever you have so this point you should keep in your mind, wherever we have a overdraft balance or unfavorable, so we start the question with the minus. That's all. This you have to keep in your mind. Rest of the things are absolutely same, which we have done in the previous class, right, and in the previous illustration. So still I'm just doing it for you, right? So there'll be practice and you will understand better. So first one, it is telling a bill receivable for rupees 5,000 previously discounted with the bank had been dishonored and debited in the passbook. Okay, so it's telling bills receivable, BR आपकी assets होती है, and whenever you receive a BR, so it's telling BR for rupees 5,000 previously discounted with the bank. Students, what happened when you receive BR from somebody and you get it discounted from the bank? जो BR आया है उसको आप बैंक से डिस्काउंट कराते हैं, ठीक है, तो आपके पास पैसा आता है. ओके, discounted with the bank had been dishonored and debited in the passbook, right? So what happened? You got a BR, you got it discounted from the bank. Okay, and later on this had been dishonored and debited in the passbook. You have to understand the process first, only then you will be able to do. You received a BR, you take the BR and go to the bank. बैंक को आप अपना BR दे देते हैं, बैंक अपने पास BR रखता है, राइट, बदले में वो आपको अमाउंट दे देता है, जो भी उसमें लिखा होता है, कुछ अमाउंट चार्जेस के काट के बाकी अमाउंट वो आपको दे देता है. तो दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल. ओके, सो यू गॉट इट डिस्काउंटेड, 5,000 का था तो 5,000 रुपीज़ आपको मिल गए.
ठीक है. सो व्हाट हैपन व्हेन द बैंक हैज़ प्रेजेंटेड, यहाँ तक तो ठीक है, अपने को कुछ नहीं करना. बट नाउ व्हेन द टाइम कम्स ऑफ द मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी का टाइम आया तो बैंक ये BR लेके, जिस पार्टी ने इनिशियली इशू किया था, BP होल्डर जिसको इनिशियली पेमेंट करनी थी, उनके पास गया बैंक. ठीक है, बैंक वो BR लेके गया BP वाली पार्टी के पास, बट दे डिनाइड फॉर द पेमेंट. दे सेड वी डोंट हैव मनी राइट नाउ. ओके, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसऑनरिंग ऑफ द बिल. तो जब डिसऑनर हो जाता है बिल, यहाँ पे अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. जब ये क्वेश्चन ये आपका BR डिसऑनर हो गया, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, बीइंग डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन द पासबुक, तो बैंक ने आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लिया, आपका अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया. आई होप इट इज क्लियर नाउ. बैंक डेबिट हो जाना, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाना मीन्स आपका बैंक से पैसा कम हो जाना. बट यू डिडंट हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ डिसऑनरिंग ऑफ द बिल, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. ठीक है, तो बैंक से पैसा कम हो चुका है. अगर हम पासबुक की बात करें, पासबुक में से पैसा कम हो गया है और आपकी कैश बुक में अभी पैसा ज़्यादा है क्योंकि आपने माइनस नहीं किया. ठीक है, तो पासबुक में से कम हो गया है. वी हैव अ बैलेंस ऑफ द कैश बुक, सो आई वांट टू बी इक्वल ऑफ द पासबुक, सो व्हाट आई विल डू, आई विल आल्सो रिड्यूस. तो आप भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. सो द अमाउंट 5000 यू विल बी रिड्यूसिंग फ्रॉम हेयर. ओके, सो प्लस एंड माइनस वी कैन राइट दिस. सो माइनस है आपका 5000, आई हैव रिटन लाइक दिस. You can see here the format. Okay, particulars plus and minus. So continuously also you can do like chronological order, जैसे जैसे होता जा रहा है आप लिखते जा रहे हैं plus minus. Or you can do this also, that at one place you have written all the plus items and then minus item, right? Both the methods you can follow, there is no problem. Now next point, it is telling interest on investment collected by bank and credited in the passbook rupees 1500. So it's telling that interest on investment collected by the bank, आपने कहीं बाहर इन्वेस्ट कर रखा था, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है. यू हैव गिवन द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू योर बैंक एंड नाउ बैंक हैज़ कलेक्टेड दैट इंटरेस्ट एंड केप्ट इन योर अकाउंट. ठीक है, बैंक ने आपके अकाउंट में डाल दिया. अकाउंट में डालना यानी कि आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाना. ऑल राइट, सो बैंक हैज़ क्रेडिटेड योर अकाउंट, कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक बाय 1500. राइट, तो पासबुक में आपका 1500 रुपीज़ आ चुका है. पासबुक में अमाउंट प्लस हो चुका है 1500. ठीक है, लेकिन कैश बुक में वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन. कैश बुक में कम अमाउंट है. ओके, ओवरऑल कम बैलेंस है ना, क्योंकि पासबुक में तो 1500 जुड़ चुका है, क्रेडिट हो चुका है, बट कैश बुक में नहीं है. सो व्हाट आई विल डू, इफ़ आई वांट टू रीच इक्वल टू दिस बैलेंस, आई विल आल्सो प्लस 1500. आप प्लस कर देंगे, तो यू विल राइट इन द प्लस कॉलम एंड यू हैव टू राइट द नरेशन हेयर. जो भी स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ लिखनी है. नेक्स्ट इट इज टेलिंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड. चेक डिपॉजिटेड, अंडरस्टैंड द इनिशियल थिंग व्हाट यू हैव टू डू. चेक डिपॉजिट कब करते हैं, जब आपको किसी से मिलते हैं चेक. तो जैसे ही आपको चेक मिला, ओके, आपने अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में डिपॉजिट कर दिया, मींस बैंक अकाउंट डेबिट टू सो एंड सो पार्टी. राइट, तो आपने अपने कैश बुक में क्या कर दिया, प्लस कर दिया है. कैश बुक में प्लस कर दिया एंड इट्स टेलिंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक येट नॉट कलेक्टेड. आपने 7500 प्लस कर दिया, बट योर बैंक कुड नॉट कलेक्ट दिस अमाउंट. येट नॉट कलेक्टेड, अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है. ठीक है, तो पास कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा है, 7500 आपने ऐड कर दिया, बट नथिंग हैज़ बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक येट. तो आप उसके बराबर जाने के लिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. सो यू विल बी इक्वल टू पासबुक. ओके, सो माइनस कर देंगे आप 7500. ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव interest charged by the bank on overdraft balance. Okay, as you know that we have a overdraft balance, and whenever we have overdraft something, so bank charges interest. All right, and when bank charges something, so directly it debits your account, आपके account से निकाल लेगा वो. So interest charged by the bank on overdraft balance 1850. So bank has reduced your passbook by 1850, debited the account, डिडक्ट कर लिया आपके अकाउंट से 1850. ठीक है,
हेयर यू डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, तो कैश बुक में अपना बैलेंस ज़्यादा है क्योंकि हमने ये माइनस नहीं किया ना, तो कैश बुक में ज़्यादा है, पासबुक में कम है। पासबुक के बराबर जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से आप माइनस कर देंगे, 1850 आप भी माइनस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव चेक इशूड, check issued but not yet presented for payment, 11,350, right? Understand the basic? Check issued, जैसे ही आप चेक इशू करते हैं मीन्स यू हैव साइंड अ चेक एंड यू हैव गिवन टू समबडी एज अ पेमेंट, ठीक है? तो एज यू इशू द चेक यू हैव एंटर्ड इन योर कैश बुक्स बैंक कॉलम कि यहाँ से पैसा कम हो गया। जैसे ही आपने इशू किया मीन्स पैसा कम हो गया, तो आपने क्या किया है, कैश बुक में से माइनस कर दिया है। हाउ मच? 11,350 आपने माइनस कर दिया। It's telling check issued but not yet presented for payment. You have issued to somebody, suppose Mr. Ram को आपने इशू किया 11,350 का चेक, but Mr. Ram did not present it for payment. जब राम ने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया तो उसको पेमेंट कहाँ से मिलेगी? दैट मीन्स योर अकाउंट इज इंटैक्ट, आपके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं गया है, यानी पासबुक में पैसा नहीं डिडक्ट हुआ है, यानी बैलेंस ज़्यादा है। पासबुक में आपका बैलेंस ज़्यादा है जबकि कैश बुक में से आप माइनस कर चुके हैं। आई हैव अ बैलेंस ऑफ द कैश बुक एंड आई हैव टू गो टू इक्वल टू दिस पासबुक्स बैलेंस, ठीक है? मैंने पहले माइनस किया था, वहाँ पे ज़्यादा है, तो अब मैं क्या करूँ, वापस इसको प्लस कर देंगे। 11,350 को आपने प्लस कर दिया। ओके, देन इट इज़ टेलिंग received a payment directly from a customer into the bank. Okay, some customers they have an account number and directly they can deposit in the bank, so they have done the same. 12,500 is deposited by one of the customer in the bank directly, तो पासबुक में मेरा 12,500 किसी ने जमा करा दिया है। कैश बुक में आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन। ओके, नाउ the balance of passbook is more as they have received this amount, but cash book's balance is less because I did not add and I have this balance in my hand. Okay, तो यहाँ कैश बुक का बैलेंस हमें पासबुक के बराबर जाने के लिए क्या करना होगा, 12,500 जो पासबुक में आया है वो हम यहाँ भी प्लस कर देंगे, ठीक है? सो 12,500 आई विल प्लस इन द कैश बुक्स बैंक कॉलम, ठीक है? सो वी हैव डन दैट, 12,500, yes. Next we have checks recorded in the cash book but not sent to bank for collection was 17,500. Okay, it's telling checks recorded in the cash book but not sent to the bank for collection. Students, these are the check, understand the basic, these are the check which you have received from somebody. आपको किसी से चेक मिले हैं, आपने अपने पास रखे, लेकिन जब तक उसको आप बैंक के पास नहीं भेजेंगे कलेक्शन के लिए, हाउ द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? You have received the check from somebody, now you have to send these checks to the bank as bank can collect the money from their account, right? But you did not do so. So checks recorded in the cash book, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, यानी कैश बुक में आपने उन चेक्स को डाल दिया है, यानी अमाउंट बढ़ गया है, ठीक है? कैश बुक के बैंक कॉलम में पैसा आ गया है, बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, और बैंक को भेजा ही नहीं है आपने। सो व्हाट यू हैव डन, 17,500 आपने कैश बुक में लिख दिया है, आपने प्लस कर दिया है, ठीक है? बट बैंक में नहीं भेजा, तो बैंक वालों ने कलेक्ट भी नहीं किया और आपके अकाउंट में क्रेडिट भी नहीं हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे पैसा कम है, कम इन द सेंस कि आया ही नहीं है 17,500, और यहाँ पे आपने अननेसेसरली इसको ऐड कर दिया। आई हैव टू बी इक्वल टू दिस पासबुक, सो व्हाट आई विल डू, जो मैंने किया था उसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है? उसके बराबर जाने के लिए एक छोटा सा रूल है कि वॉट एवर यू हैव डन वी डू द रिवर्स। ओके, तो 17,500 आपने प्लस किया था पहले, अब क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। ओके, now next we have bank charges debited as per the passbook 500. बैंक चार्जेस यानी बैंक ने कुछ चार्जेस लिए हैं और आपकी पासबुक को डेबिट कर दिया है 500 से। डेबिट करने का मतलब आपके अकाउंट से पैसा कम हो जाना। So 500 has been reduced from your passbook and we don't have any information in the cash book, so it is showing more balance by 500. Okay,
पासबुक में से 500 कम हो गया है. नाउ व्हाट टू डू, यहाँ अपने पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसके बराबर जाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से भी 500 हम कम कर देंगे. ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा आपका 500. ओके, दिस वे वी हैव डन. नाउ यू कैन बैलेंस इट. So how to balance? It's just disturbing here. We do the total. Here if we do the total of these three figures, that comes 25,350. Okay, and if you do the total of all that, so this comes 77,350. All right students, so it's very important. Now pay attention. दिस वी आर डूइंग ऑफ द ओवरड्राफ्ट. नेगेटिव बैलेंस, माइनस से हमने शुरू किया था. ओके, नाउ बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस. सो वन थिंग इज ऑब्वियस एज वी हैव लर्न अर्लियर. सो हेयर द बैलेंस वो क्या होगा, ऑपोजिट होता है. यहाँ कैश बुक का है तो यहाँ पे पासबुक का. सो बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर passbook will be there. Now question arises, either this will be credit balance or debit balance. So let's see, is that showing where the more is there. So minus वाला आपका ज़्यादा है, means still it is overdraft. अगर ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता तो यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस होता. Here you can see this minus वाला is 77,350 and plus वाला is still in it is less 25,350. So what is its difference? Difference आप find out करेंगे, that comes 52,000. Okay, and you will show in the minus one, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है ना, तो ये आपका ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है 52,000. एंड हेयर पासबुक का कौन सा दिखाएंगे आप, डेबिट का दिखाएंगे, क्रेडिट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पासबुक का क्रेडिट दिखाने का मतलब पॉजिटिव में होना. ओके, इफ़ वी वुड हैव यहाँ पे 25,350 है, अगर यहाँ पे सिर्फ 25,000 होता तो 350 आपका पॉजिटिव में आ जाता और यहाँ पे हम पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिखा सकते थे. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सो दिस पॉइंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. इफ इट इज शोइंग ओवरड्राफ्ट, अनफेवरेबल बैलेंस और कैश बुक्स क्रेडिट बैलेंस, दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव बैलेंस एंड वी स्टार्ट विद द माइनस. वन थिंग. सेकेंड, while winding up the question, you should keep in your mind, if still it is negative balance, so here passbooks negative balance you have to show. Okay, here it is passbook, so here it is cash book, so here passbook, and if it is passbook here, then it will be cash book here. Okay, positive means positive and negative है तो negative लेंगे. All right students, so here we have completed this illustration number 6. Now I will take two more points of illustration number 7. The reason you may get confused in the statement, so I will clear the statement. These 2 points only I will be taking. Okay, so it's telling that on 31st January, so keep this date in your mind. 31st January 2017 को cash book showed a bank overdraft 12,500. all right, so it is showing, if I take it like this, it is your plus, it is your minus. Okay, कैश बुक का बैंक ओवरड्राफ्ट. ठीक है, माई कैश बुक शोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है एंड वी टेक इन द नेगेटिव साइड, माइनस में आप इसको लेते हैं 12,500. राइट, नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज टेलिंग cash and checks amounted to rupees 1,340 were sent to bank on 27th January, but checks worth rupees 230 were credited on 2nd February, and one check for rupees 45 was returned by them as dishonored on 4th February. Okay, so it's telling cash and check amounted to rupees 1,340 were sent to bank. ठीक है, आपने इतने के चेक बैंक में भेजे. चेक भेजना यानी कि यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम समवेयर और आपने भेज दिया, तो आपने कैश बुक में क्या किया होगा, आपने कैश बुक में प्लस कर लिया होगा. ठीक है, कितना, दिस इज 1340, आपने कैश बुक में प्लस कर दिया. ओके, नाउ फर्दर इंफॉर्मेशन दे आर टेलिंग was sent to the bank on this date, but checks worth rupees 230, पूरा पढ़ना है आपको,
वर्थ ₹230 वर क्रेडिटेड ऑन 2 February। अगर आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप कोई और कंक्लूजन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 230 वर क्रेडिटेड ऑन 2 February। तो 2 February कब आता है? आफ्टर प्रिपेयरिंग द रिकॉन्सिलिएशन। आप 31 जनवरी को रिकनसाइल कर रहे हैं, ठीक है, और 2 February यानी कि बाद में। इसका मतलब डेट निकलने के बाद 230 वर क्रेडिटेड, बैंक में आ तो सारा गया, लेकिन ये जो 230 है ये 31 जनवरी तक नहीं क्रेडिट हुआ था, आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा नहीं आया था। आर यू गेटिंग? ठीक है, तो कितना आया था? बाकी का बचा आ गया था। ओके, सो व्हाट हैपेंड स्टूडेंट्स, 1340 you have added in your cash book, but 1340 में से हम 230 अगर माइनस करते हैं, सो दिस कम्स 1110। तो आपका पासबुक में कितना अमाउंट आया था? सिर्फ 1110 आ चुका था। तो इतना तो आपका इक्वल हो गया, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपका 230 ही है, ठीक है। तो हम 230 को डील करेंगे। ये वो अमाउंट है जो आप यहाँ तो प्लस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ अभी भी नहीं आया, यहाँ क्रेडिट नहीं हुआ है। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? इन्होंने 3 फिगर दिए आपको गोलमोल घुमाने के लिए, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट। अपने को ये डील नहीं करना है, डील क्या करना है? सिर्फ 230, क्योंकि जो डिफरेंस है वो तो यहाँ भी आपने प्लस कर दिया और यहाँ भी आ चुका है। डिफरेंस क्या है? 230। ये नहीं आया है। कहाँ नहीं आया? बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है, आया है लेकिन बहुत लेट आया है, ठीक है। तो रिकॉन्सिलिएशन के टाइम 230 आपका बैंक में नहीं आया, बिकॉज सो योर पासबुक इज शॉर्ट बाय 230 से ये आपका शॉर्ट है, जबकि यहाँ पे आप प्लस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन पे पहुँचने के लिए आप क्या करेंगे? इसमें से 230 आप माइनस कर देंगे, ठीक है। सो यू विल रिड्यूस 230, माइनस आप 230 कर देंगे, ऑल राइट। एंड फर्दर इट इज टेलिंग, बाकी का 1110 ये आपने यहाँ पे भी आ गया आपका, ठीक है। आई मीन यू हैव शोन इट हेयर और यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, लेकिन फर्दर एंड वन चेक फॉर ₹45 was returned by them as dishonored on 4th February. One more thing has happened कि as you have plus the whole amount here, पूरा अमाउंट आपने यहाँ लिख दिया, लेकिन एक चेक जो आपने डिपॉजिट कराया था, राइट, सो 45 रुपीज़ का था जो कि डिसऑनर हो गया, ठीक है, वॉज रिटर्न बाय देम एज डिसऑनर्ड ऑन 4th February, ऑल राइट। तो ये पैसा आपका यहाँ डिपॉजिट हो चुका है, यहाँ पे ज़्यादा है, जबकि बैंक में ये पैसा भी नहीं आया है। एक तो 230 नहीं आया था और बाकी की इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहा कि आ गया, बट बाद में उन्होंने कहा कि 45 रुपीज़ वाला है वो आपका डिसऑनर हो गया है, राइट। डिसऑनर हो गया, दैट मीन्स यू डिडंट रिसीव द पेमेंट। तो उसको भी आप क्या करेंगे? यहाँ पे ज़्यादा आ गया ना फिर 45 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो उसको आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 45 रुपीज़ भी आपका माइनस हो जाएगा। Now next it is explaining, during the month of January, I issued checks worth ₹1,670 to my creditors. Okay, out of these, checks worth this much were presented for payment on 5th February. Okay, so it's telling I issued a check. So it is talking on behalf of businessman कि they have deposited the check of 1670 to my creditors. आपने चेक इशू किया, नॉट डिपॉजिटेड, सॉरी, आपने चेक इशू किया क्रेडिटर्स को। इशू करना यानी कि आपने चेक साइन करके दे दिया, यानी आपके कैश बुक के बैंक कॉलम में से पैसा कम हो चुका है, ठीक है। आपने माइनस कर दिया, यहाँ से कैश बुक में से आपने माइनस कर दिया है, ठीक है। कितना? 1670 आप माइनस कर चुके हैं। बट आउट ऑफ दीज चेक्स वर्थ ₹1370 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5th February. ओके, यानी कि 1670 में से 1370 ऐसा अमाउंट है वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5th February, मीन्स रिकन्सिलिएशन की डेट निकल गई है, रिकनसाइल करने की डेट थी 31 जनवरी, उसके बाद आपने प्रेजेंट किया है, तो पेमेंट कहाँ से होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ माइनस कर दिया 1670,
राइट, लेकिन यहाँ पे तो माइनस हुआ ही नहीं है वो। ओके, तो कितना माइनस, आई मीन कितना पेमेंट हुआ है अभी तक? 1670 था एंड 1370, ठीक है, 300 की पेमेंट हुई है यहाँ। ओके, इन्होंने कितना माइनस किया है? सिर्फ 300 किया है, और यहाँ से आपने किया 1670। सो डिफरेंस क्या है आपका? दिस अमाउंट 1370 इज नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया है, तो यहाँ से माइनस कहाँ से होगा? ठीक है, तो यहाँ से माइनस नहीं हुआ, यहाँ पैसा अभी ज़्यादा है, जबकि आप यहाँ से माइनस कर चुके हैं। तो अब आप क्या करेंगे? वापस इसको ऐड बैक कर देंगे, 1370 को आप प्लस कर देंगे। Right, students? So this way you will be doing. So these 2 points I have explained, and rest of the points are simple. We have discussed it many times, so you can do it easily. And still, if you have any problem, you face any problem, you can ask me. All right, so it's my request to all the students, do the questions seriously, do the illustrations, and simultaneously you should complete your back questions also, so you can gain the confidence. Okay, so keep practicing. Thank you.